So welcome students. In our previous lecture, we completed the concept of morphological characterization of bacterial cell. And from this video, we will move on to the next concept of our syllabus related with the cultivation of bacterial cells. That is a cultivation of bacteria. Now this concept of cultivation of bacteria, it is related with the laboratory procedures that deals with the isolation of bacteria, the study of bacterial cells in laboratory condition, again the maintenance of bacterial strains. For these different purposes, we have to prepare a medium which is called as a बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो नेसेसिटी होती है कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, इट इज अ स्पेसिफिक बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम. ठीक है. नाउ दिस बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीडियम विच कंटेन ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स that are required by the bacterial cells for their normal growth. ठीक है. And along with nutrients, here we have to provide different type of environmental conditions. क्योंकि जो bacterial cells है, these bacterial cells in natural conditions shows growth according to the different factor, जहाँ पर अलग अलग conditions present है, like the conditions of temperature, then the condition of pH of medium जहाँ वो grow होते हैं, then various type of salt concentration, mineral concentration, we have osmolarity of bacterial cells. ठीक है. इस टाइप के अलग अलग जो फैक्टर है, द फिजिकल फैक्टर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ कैरी आउट किया जाता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. और ये जो भी ग्रोथ यहाँ कैरी आउट होती है, दिस ग्रोथ इज बेसिकली कैरिड आउट इन विट्रो कंडीशन. कहाँ कैरी आउट की जाएगी ये ग्रोथ? इन विट्रो कंडीशन. इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द सेल, जहाँ हम आर्टिफिशियल ग्रो कर सकते हैं. इन विट्रो कंडीशन, इट इज द आर्टिफिशियल ग्रोथ और आर्टिफिशियल कंडीशंस. हियर वी आर कल्टिवेटिंग द डिफरेंट बैक्टीरियल स्पेसीज इन अ लैबोरेटरी कंडीशन to study their morphological feature or their pathogenicity or any type of purpose related to द बैक्टीरिया. यह हमें लेबोरेटरी कंडीशंस में इन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, और इसीलिए इनकी ग्रोथ कैरी आउट करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नेसेसरी है. पहला द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड सेकंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशन. न्यूट्रिएंट फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी है. इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें एक स्पेसिफिक कंडीशंस मिलते हैं, उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल कंडीशन और इन विट्रो कंडीशन विच इज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट बनाया जाता है, अ न्यूट्रिएंट मीडियम, इट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम. ठीक है. अगेन in case of bacteria, there are different type of nutritional requirement and bacteria are classified according to that various requirement. अगर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देखें बैक्टीरिया की, the nutritional requirements, then the bacteria are classified into different कैटेगरीज. यहाँ अलग अलग सोर्सेस होते हैं. लाइक द फर्स्ट सोर्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे पहले यहाँ पे आएगा सोर्स ऑफ एनर्जी.
every living cell require a source of energy to carry out various type of metabolic activities or the physiological activities inside a cell. विदाउट एनर्जी कोई भी लिविंग सेल मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकता. इसीलिए बैक्टीरियल सेल्स की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अगर कोई आता है तो इट इज अ सोर्स ऑफ energy. And according to the source of energy, the bacterial population are divided into two types. As the first one, they are called as phototrophs, and the second category, they are called as lithotrophs or chemotrophs. Chemotrophs according to the source of energy. Now in case of phototroph, the bacterial species which obtain their energy directly from the sunlight. कहाँ से obtain करेंगे ये? Sunlight से obtain करेंगे. Means in short, these are phototropic type of bacterial cell which are able to perform the process of फोटोसिंथेसिस. ये इस टाइप के सेल से जो सेल फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, द सेकेंड आर द कीमोट्रॉप. मीन्स द बैक्टीरियल स्पेसीज विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कहाँ से ऑब्टेन करेंगे ये? बाय परफॉर्मिंग different type of chemical reaction inside their cell. That particular category of bacterial cell is referred as the chemotropic bacteria. Okay, ये हो गया पहला हमारा source of energy. Now the second requirement, the nutritional requirement, it is the source of electron. Second आता है यहाँ पर source of electron. Now in both type, चाहे फोटोट्रॉप हो या लिथोट्रॉप हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग टाइप से आता है. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट. द इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट by the activity of different enzyme on different type of substrate. The electrons are obtained, and by using these electron with the help of that specific ATP synthase F0 F1 particle, ATP are produced. और यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दो अलग अलग टाइप्स होते हैं. पहला टाइप यहाँ पे आएगा the type of bacteria which utilizes organic components. ठीक है, the bacteria which utilize the organic components for their source of electrons are generally referred as organotrophs. And second category, these are referred as lithotropic bacteria or lithotrophs. The second category of bacterial species, organotrophs, by carry out the reduction of substrate. और यहाँ पर जो भी substrate है, all these substrate are different type of organic components. ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं. फिर चाहे यहाँ पर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन. Okay, and in case of lithotroph, they utilizes inorganic component. Inorganic components like hydrogen sulfides. ठीक है. सो इनिशियल ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में. बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सनलाइट या बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ से ऑब्टेन करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी? आइदर बाय द रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और बाय द रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. और इन दो अलग अलग कंपोनेंट को कंबाइन करने के बाद यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज तैयार होते हैं. ठीक है, वी ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी लाइक
पहले जो है हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पर हम सोर्स ऑफ एनर्जी को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे। पहला आता है हमारा फोटोट्रॉप्स। द फर्स्ट कंडीशन ये है फोटोट्रॉप्स। Now in case of phototropes there are two different type of possibilities when we combine it with the source of electron. A phototropic bacteria may obtain electron by the reduction of organic component, and such a particular category is called as photoorganotrop. क्या कहेंगे उस कैटेगरी को? फोटो organotrop. Second, a phototropic type of bacteria may obtain its electron by the reduction of inorganic component. इसे हम कहेंगे फोटोलिथोट्रॉप। ये दो कैटेगरी होती है फोटोट्रॉप्स में, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हमारे पास आएगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर chemotrops, the bacteria which obtain their energy by performing different type of chemical reactions, the chemotrops. And here again, when we combine these chemotrops with the source of electron, there are two different type of possibilities. यहाँ पर फिर से दो अलग अलग possibility है। A bacteria may obtain its electron by the reduction of organic component, a chemotropic bacteria, the condition called as chemoorganotrops. And second यहाँ पे आएगा a chemotropic bacteria may obtain their electron by the reduction of inorganic component called as chemolithotrop. And remember this last condition, the last one, the chemolithotrop are considered as the first evolved living organism on this planet under the deep ocean, जो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ओके, दो लिविंग सेल बने हैं। ये लिविंग सेल कौन से है? chemolithotropic type of bacteria which utilizes different type of chemical reaction, intracellular chemical reaction। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी chemical reaction होंगे ये सभी के सभी intracellular type of chemical reaction, not the extracellular. Okay, so by performing intracellular chemical reaction, these bacteria again utilizes the inorganic components as electron donor, which are utilized in the production of ATP, collectively called as chemolithotrop. And these chemolithotrop were the firstly formed living cell on this planet. ये इस प्लैनेट पे सबसे पहले तैयार होने वाले लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे बेसिक इनिशियल टू सोर्सेस। यहाँ पर तीसरा एक कंपोनेंट आता है, द थर्ड कंपोनेंट, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ कार्बन। एज वी नो दैट द कार्बन इज अ सेंट्रल एलिमेंट इन केस ऑफ लाइफ। जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप के, माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑल दिस कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड कार्बन आइटम। एंड इन दिस केस देयर आर टू डिफरेंट टाइप। पहला टाइप आएगा ऑटोट्रॉप। कार्बन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन, कार्बन इज ऑब्टेन्ड एज एटमॉस्फेरिक कार्बन। From the atmospheric carbon dioxide. That particular category of bacteria is referred as the autotropic bacteria, that is autotrophs. And in second case, the carbon may obtain from different type of organic components. Okay, by degradation of various type of organic components, this category will be referred as the heterotrophs.
सो इन रिलेशन विद बैक्टीरिया अगर इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट स्टडी की जाए तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये 3 अलग अलग फैक्टर आते हैं जो हर बैक्टीरियल स्पेसीज के लिए बेसिक नेसेसिटी होती है। किसी भी बैक्टीरियल स्पेसीज को अगर हमें लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करना है तो सबसे पहले इन 3 अलग अलग सोर्सेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है, और सोर्स ऑफ कार्बन का रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट क्या है। एंड बाय obtaining these information we can prepare any type of bacteriological media by adding different type of complex organic and inorganic type of component in the form of ingredient. Okay, ये सबसे पहला हो गया। Now again these इसके साथ ही और काफ़ी सारे टाइप के रिक्वायरमेंट होते हैं एक लिविंग सेल में, उसे हम कहेंगे एलिमेंटरी रिक्वायरमेंट। Different type of element as these elements are involved in the formation of the micro as well as macro biomolecule। ठीक है, न्यूट्रिशनल इन्वॉल्वमेंट में अगला फैक्टर क्या देखना है हमें अभी, the various type of element which are involved in the synthesis of micro and macro biomolecules because entire living cell चाहे प्रोकैरियोटिक क्यों ना हो, दिस लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल एंड हियर वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा आएगा, नाइट्रोजन। ओके, एलिमेंटरी फॉर्म में नाइट्रोजन भी चाहिए होगा, देन सल्फर, देन पोटेशियम। ओके, दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। फॉस्फोरस है एंड लास्टली हमारे पास पोटेशियम है। अब ये अलग अलग जो एलिमेंट है ये किस लिए चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड एज, कहाँ यूज होता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। नाइट्रोजन एक सेल में नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में होता है एंड दीज नाइट्रोजन बेसेस आर नाउ प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होंगे। ऑल द अमाइनो एसिड्स आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, देन द न्यूक्लियोटाइड्स है, और सबसे लास्ट these nitrogenous bases are present in the phospholipids, जो भी लेसिथिन, सेफेलिन, ये टाइप के फॉस्फोलिपिड्स है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस। अगेन सल्फर इन केस ऑफ 2 important amino acid cysteine एंड मिथियोनिन, 2 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है आउट ऑफ 20, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, बोथ आर कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। यहाँ पर सल्फर का जो काम होता है, सल्फर एक्ट्स एज अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसल्फाइड ब्रिज और डाइसल्फाइड बॉन्ड विच प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। अगेन दिस important element potassium, now it is required as a cofactor along with different टाइप। पोटेशियम भी है, यहाँ पर कैल्शियम भी आता है जो कोफैक्टर के फॉर्म में रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी आएगा, मैग्नीज भी आएगा। ऑल दिस टाइप ऑफ एलिमेंट आर बेसिकली एक्ट्स एज अ कोफैक्टर विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो इंट्रासेल्युलर एंजाइम है, जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं। इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए यहाँ नेसेसिटी होती है अलग अलग एलिमेंट की जो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो गए एज अ कोफैक्टर। देन वी हैव लास्टली द phosphorus, and phosphorus
सबसे इम्पोर्टेंट एटीपी। एटीपी इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी जहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अलॉन्ग विथ एटीपी वी हैव न्यूक्लियोटाइड्स एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर the monomers in two type of nucleic acid, DNA as well as RNA। ओके, सो जो भी यहाँ पर एक मेजर मैक्रोबायोमोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट है बैक्टीरियल सेल का, इस मैक्रोबायोमोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट के लिए ये 4 बेसिक एलिमेंट ज़रूरी होते हैं: नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, a basic requirement, a nutritional requirement of bacterial cell। ठीक है, अगेन इनके साथ ही they require certain category of vitamins। bacterial cell also require vitamins and these vitamins are generally called as bacterial vitamins। जो vitamins इस bacterial cell के लिए necessary है इन्हें कहा जाता है बैक्टीरियल विटामिन्स। एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल विटामिन बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। ओके, इस बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइक द निकोटिनिक एसिड। यहाँ पर निकोटिनिक एसिड है, राइबोफ्लेविन, थाइमीन। So these different type of members of B complex category are also required by the bacterial cell to carry out their normal growth। ये हो गया हमारे कुछ फंडामेंटल बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम कंटेनिंग ऑल दीज फैक्टर। ये सभी फैक्टर कंबाइन करके एक बेसिक मीडिया तैयार किया जाता है, मीडियम तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाएगा बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम। एंड दिस बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम is used for the cultivation of bacteria in a laboratory condition। Okay, a bacteriological medium now what is a bacteriological medium? A bacteriological medium is a complex preparation। अगर सिंपली इसे डिफाइन किया जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जहां पर अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। एंड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे एंड दीज इंग्रेडिएंट्स आर सपोज टू प्रोवाइड ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पेसीज। ये जो भी इंग्रेडिएंट हम यहाँ ऐड करेंगे, ये सभी इंग्रेडिएंट किस लिए ज़रूरी है? टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स of bacterial cells। ओके, सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए यहाँ हम अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब बेसिक इंग्रेडिएंट अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स मीडियम तैयार होता है, अ कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन, इट इज़ नोन एज अ मीडियम, और सिंपली इसे कहा जाता है अ मीडिया। ओके, मीडियम, और एकदम सिंपली क्या कहेंगे हम इसे? मीडिया, अ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। एंड दिस बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया इज अ मीडियम कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो पहला मीडियम यहाँ पर तैयार होता है इसे कहा जाएगा अ बेसल मीडियम।
Okay, the most simplest type of bacterial medium which is used for the cultivation of bacterial species. अब इस बेसल मीडियम में हमें सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस बेसल मीडियम में ऐड करेंगे इट इज पेप्टोन. क्या है? पेप्टोन. Now this peptone is a peptic digest of animal tissue. एनिमल टिश्यू भी है, कुछ केस में प्लांट टिश्यू भी यूज किया जाता है. एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पेप्टिक एंजाइम. और ये जो डाइजेशन है इट इज अ पार्शियली डाइजेशन. सो इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू. अब यहाँ पे अलग अलग टिश्यूज यूज करना है. लाइक फ्रॉम द एनिमल वी यूज लीन मीट. लीन मीट यूज करेंगे यहाँ पर. वी यूज हार्ट एंड मसल टिश्यू. ओके, एनिमल सोर्सेज से हार्ट एंड मसल टिश्यू यूज करेंगे, लीन मीट यूज करेंगे. फ्रॉम प्लांट वी ऑब्टेन सोया टिश्यू. ओके, सोया टिश्यू को यहाँ पे यूज करेंगे. और ये जो भी टिश्यू है इन सभी टिश्यू को हमें डाइजेस्ट करना है बाय यूजिंग अ पेप्टिक एंजाइम. अब जब पेप्टिक एंजाइम से इसे डाइजेस्ट करेंगे, और ये डाइजेशन कैसा होता है? पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है. तो वहाँ पर जो भी रिमेनिंग फॉर्म है उस रिमेनिंग फॉर्म को कहा जाता है पेप्टोन. एंड दिस पेप्टोन इज नाउ यूज्ड टू सपोर्ट द कंपोनेंट्स लाइक अमाइनो एसिड. इट एक्ट्स एज अ पूल ऑफ अमाइनो एसिड्स. जब हम इस पेप्टोन को न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करेंगे तो वहाँ ये क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करेगा. इट प्रोवाइड एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर. जो बेसिक एलिमेंट हमने देखे हैं बैक्टीरियल स्पीसीज के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ये सभी एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा. इट प्रोवाइड विटामिन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, bacterial vitamins, and this peptone it acts as a buffer which maintain the pH of bacteriological medium. ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस पेप्टोन की. ये अमाइनो एसिड प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सभी टाइप के कंपोनेंट अलॉन्ग विथ वेराइटी ऑफ मिनरल्स. ये मिनरल्स एंड सॉल्ट भी प्रोवाइड करता है, लाइक द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एक्सेट्रा, जो को फैक्टर के लिए ज़रूरी होंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस बेसल मीडियम में यहाँ पर ऐड किया जाता है ईस्ट एक्सट्रैक्ट और एडिशन ऑफ मीट एक्सट्रैक्ट. ठीक है, पहले हमने ऐड किया है पेप्टोन. अब यहाँ पर हमें ऐड करना है ईस्ट और फिर मीट एक्सट्रैक्ट बाय मीन्स ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस. द एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन. ये जो एक्सट्रैक्ट है ईस्ट, इट इज अ ब्रेकर्स ईस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई सैकेरोमाइसीज सर्विसी. और यहाँ पर जो मीट यूज किया जाता है वी कैन रिप्लेस द ईट एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग the meat extract, where this meat is a lean meat obtained from the animal sources. animal sources से इन्हें obtain किया जाएगा. और ये जो भी कंपोनेंट है इन्हें सबसे पहले completely boil किया जाता है by the boiling process and then it is extracted. इसे extract किया जाएगा and extract करने के बाद it is dehydrated. एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका कैरी आउट किया जाएगा डिहाइड्रेशन टू कन्वर्ट दैट एक्सट्रैक्ट इनटू अ पाउडर फॉर्म. हियर अगेन दिस ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड मीट एक्सट्रैक्ट
ऑल्सो नेसेसरी टू सप्लाई द एडिशनल फैक्टर्स। यहाँ अमाइनो एसिड ये एलिमेंट भी काफ़ी सारे टाइप के सप्लाई करेगा। ऑल दीज कंपोनेंट्स इट सप्लाइज द न्यूक्लियोटाइड्स, जो नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, द फ्री न्यूक्लियोटाइड, इसे सप्लाई करने का काम करेगा। अगेन इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दो मेजर एलिमेंट जो यहाँ से सप्लाई होते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर मीट एक्सट्रैक्ट। ये सेकंड कंपोनेंट ऐड करेंगे हम बेसल मीडियम में। द थर्ड कंपोनेंट इज वाटर, ठीक है। दिस वाटर इज एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट। ये जो भी हम ऐड कर रहे हैं, पेप्टोन ऐड करेंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे या फिर मीट एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, ये सभी कंपोनेंट ऐड करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट है वाटर, एंड दिस वाटर इज अ डिस्टिल्ड वाटर। जो भी वाटर यहाँ पर यूज करेंगे ये डिस्टिल्ड वाटर होगा, बिकॉज दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। 98% पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ the water, where other type of ingredients are present in macrobiomolecular form। तो साइटोप्लाज्म में अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कैरी आउट होते हैं, इसीलिए किसी भी मीडियम में वाटर ऐड करना ज़रूरी होता है। बस यहाँ पर एक कंडीशन है, इट शुड नॉट बी कॉपर डिस्टिल्ड वाटर बाय यूजिंग अ कॉपर असेंबली। यहाँ पर कॉपर डिस्टिल्ड वाटर जो है इसे यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज द फ्री कॉपर आयन कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल इन कल्चर मीडियम। जो कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में ये फ्री कॉपर आयन, कॉपर डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जहाँ से ये लिबरेट होते हैं, दिस कॉपर आयन आर फाउंड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल। सो बाय एडिशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट, और सबसे लास्ट यहाँ ऐड करना होता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, and this sodium chloride is necessary to maintain osmolarity of bacterial cell। किस लिए ऐड करना है ये? To maintain the osmolarity, concentration of positively and negatively charged ion। So by these four type of component, a artificial medium is get synthesized, which is called as a basal medium। क्या कहना है इसे? बेसल मीडियम कहना है। नाउ दिस बेसल मीडियम इज जनरली प्रिपेयर्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ मीडियम। ठीक है, सबसे पहले ये सभी हम वाटर में ऐड करेंगे, तो जो मीडियम तैयार होगा ये मीडियम जनरली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, एंड सच अ टाइप ऑफ लिक्विड मीडियम containing all the necessary requirement to support the growth of bacterial species is referred as nutrient broth। क्या कहेंगे हम इसे? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहेंगे। अगर कोई भी मीडियम, चाहे बेसल हो या अगर एडवांस टाइप का मीडियम हो, अगर वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रॉथ कहेंगे। ओके, दिस बेसल मीडियम इज अ सिंपल टाइप ऑफ मीडियम विच प्रोवाइड बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, इसीलिए हमने इसे कहा है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, इफ अ मीडियम इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, अगर कोई मीडियम सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लाइक इट इज कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इट इज अ कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, एक सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम का कंपोजिशन है, इसे न्यूट्रिएंट मीडिया भी कहेंगे या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम भी कहेंगे। एंड नाउ दिस न्यूट्रिएंट मीडिया और न्यूट्रिएंट मीडियम कैन बी प्रेजेंट इन टू डिफरेंट स्टेट। पहला तो लिक्विड स्टेट में हमने देखा है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहा है,
अगर ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, अब सॉलिड स्टेट में कैसे बनाया जाए? इफ इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट अगार. Any type of bacteriological media if present in solid state it is referred as agar, and any type of bacteriological media if present in a liquid state it is referred as a broth. अब ये सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाय द एडिशन ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट. यहाँ पर टू कन्वर्ट अ लिक्विड मीडियम इनटू अ सॉलिड मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एक अगला कंपोनेंट ऐड किया जाता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल अगार. क्या कहना है? बैक्टीरियोलॉजिकल अगार. एंड दिस बैक्टीरियोलॉजिकल अगार is a type of agar powder, okay, which is obtained from a category of algae belonging to Rhodophyta group. ये एक algae की कैटेगरी होती है Rhodophyta, ओके. और इस Rhodophyta में इन जनरल रेड algae होंगे. क्या होते हैं यहाँ पर? रेड algae प्रेजेंट होते हैं. सो फ्यू मेंबर ऑफ दिस रेड algae, इन्हें एगैरोफाइट्स भी कहा जाता है. एगैरोफाइट्स आर एबल टू सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड एज अगार विच इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. इट इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कुछ टाइप के रेड algae सिंथेसाइज करते हैं जिन्हें कहा जाता है एगैरोफाइट्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट. यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट होता है इस अगार का, इट इज एगैरोज एंड एगैरोपेक्टिन. %70 एगैरोज होगा, 30% एगैरोपेक्टिन होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है अगार. दिस अगार इज आइसोलेटेड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ मराइन algae, particularly the red algae like the Gelidium. अब इस अगार की एक यूनिक प्रॉपर्टी है. अगार ये टोटली बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट मीडियम है. अगार बैक्टीरियल एक्शन के लिए टोटली रेजिस्टेंस भी होता है. इट इज़ नॉन टॉक्सिक मटेरियल, और इसकी जो एक एबिलिटी है, इट कैन कन्वर्ट अ लिक्विड मीडियम इनटू अ सॉलिड मीडियम. व्हेन इट इज एडेड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, उसे बॉईल करने के बाद जब फिर से कूल डाउन किया जाएगा तो वो पर्टिकुलर लिक्विड मीडियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसका यूज़ अदर डिफरेंट फैक्टर में भी हमें दिखाई देता है, लाइक इन द प्रिपरेशन ऑफ जैम्स में देखिए, जेलीज में देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, वहाँ पर भी थिकनेस इंक्रीज करने के लिए इस अगार पाउडर को ऐड किया जाता है. इट इज एक्ट्स एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट विच कन्वर्ट अ मीडियम फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू अ सॉलिड स्टेट. इसीलिए अगर कोई बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रिएंट अगार. बेसिक कंपोजिशन सेम रहेगा इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट अगार. ये जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट है, दोनों टाइप के मीडियम में सेम रहते हैं. बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर हम न्यूट्रिएंट अगार कहेंगे इट मीन्स इट इंक्लूड अगार अगार पाउडर for the solidification of that medium from liquid into a solid state, or generally 2% agar powder, bacteriological agar powder is added during the preparation of that medium. उस मीडियम के प्रिपरेशन के वक्त ये 2% अगार पाउडर एडिशनली उस वहाँ पर ऐड किया जाएगा अलॉन्ग विथ दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल एंड बेसिक इंग्रेडिएंट्स. ओके, देखिए एक बार यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया के प्रिपरेशन में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं. ओके, प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट हैविंग अ बेसल मीडियम. आज हमने सिर्फ
बेसल मीडियम का इंफॉर्मेशन देखा है, किस तरह से एक बेसल मीडियम तैयार किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया स्टडी करना है। डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, दिस बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया आर अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। काफ़ी सारे टाइप के बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया है। कुछ मीडिया आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। अ सर्टन कैटेगरी ऑफ मीडिया इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। कुछ मीडिया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी कंडीशन में स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। कुछ मीडिया इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। सर्टन टाइप ऑफ मीडियम आर अगेन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोबियल एसेज। So depending upon the need, there are different type of bacteriological media which are synthesized and prepared. So हमारे आने वाले लेक्चर में हम इन सभी टाइप के बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया और इसी के साथ ग्रोथ पैटर्न ऑफ बैक्टीरियल सेल स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।